हेलो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नमस्ते प्यारे भाई और बहनों, सबको सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस ऑस्पिशियस डे आई थॉट कि लेट्स हैव अ वीडियो जिसमें वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो या तो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन और हु सो एवर are giving their next attempt and have not been able to clear this. So why this video? Basically because these two are the most difficult part of this examination in this entire preparation in my opinion. Starting the preparation और दूसरा जब आपका नहीं होता है तो उसके बाद कैसे फिर से खुद को रिजुनोवेट करके स्टार्ट करना, प्रिपेयर करना. So there were few points which I was thinking of the times when I started this preparation and which was the most difficult moment of the entire preparation era. And without any surprise, it was the starting period, for the simple reason being you don't know actually how to start, कहाँ से स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है. जैसे SECC के पैरामीटर्स होते हैं उसमें कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह से UPSC का भी जो पूरा टेस्ट है उसमें कुछ इंक्लूसिव कुछ एक्सक्लूसिव फैक्टर्स हैं. कुछ आपको अंदर अपने में समाना है, कुछ आपको निकालना है. तो मेरे जो कुछ experiences हैं from whatever I have heard from people and whatever I think is one of the right ways is you should give this examination not more than 3 years at max. 2 years is the ideal and you should try to complete this examination in 2 years. Number of attempt does not matter. The day you start you should think कि 2 साल में एग्ज़ाम निकाल लेना है. अगर नहीं निकल रहा है तो you should come out of the cycle because the cycle is very difficult. By coming out of the cycle, it does not mean you should leave this examination completely. You should try to find a job if you have left a job, and then you should try to give this examination while doing the job. आगे आप किसी पर कोई किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं क्रिएट करें. इफ़ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इट्स अनदर केस ऑल टुगेदर. देन डोंट ओवर रीड. सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना भी है कि नहीं करना है. देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, देयर विल बी मल्टीपल एडवाइसेस, देयर विल बी मल्टीपल डिमेंशंस और देयर विल बी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स ऑफ पीपल. There are people who clear this examination with the coaching. There are people who are also able to clear this examination without any coaching. So both the ways work. Now depending upon your financial condition, depending upon the time, depending on how you want to approach this examination, it will be perfectly your choice कि आप कोचिंग लेते हैं या कोचिंग नहीं लेते हैं. The primary advantage that I think coaching provides you is at least you will have 3-4 hours जिसमें आप पढ़ रहे होंगे उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड. So that will be a compulsion if you are attending it seriously. The disadvantage in my opinion is even if you want to do some different study, if you are a serious aspirant and if you want to study something लेकिन कोचिंग में कुछ और चल रहा है तो there can be a cognitive dissonance. और अगर वहाँ बहुत स्लो चल रहा है तो वो भी गड़बड़ हो जाता है. And they will give you a lot of notes which at the end will become very difficult to digest if you don't make a small notes out of it. So that is absolutely a personal choice. With the changing time and with the advent of so many online materials like Nunal sir and so many others, I believe there is a lot of opportunity also for people who are not doing coaching and they can also clear this examination. Now people always say कि you should not be reading more material, which I also agree, but you should be reading more number of times. Read less but read more number of times. It is not कि if you are reading 5-6 different coaching institute material for the same topic it is going to add any incremental बहुत substantial change नहीं आएगा. Rather than that you can focus on reading 4 different topics from same material, that will be more helpful. अगर आप 4 चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं एक ही मटेरियल का रादर देन डूइंग 6 बार एक ही चीज़ को करने से अलग अलग मटेरियल से, तो वो गलत है. आप एक ही मटेरियल एट स्टिक टू 2 मटेरियल्स एट मैक्स, वट एवर यू लाइक. देयर आर प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स, यू कैन स्टिक टू एनी 2, विजन, इनसाइट्स, फोरम, शंकर, एनीथिंग. देन most important thing is don't follow anyone blindly including me.
You can't follow anyone for this. You have to see a lot of, let's say you see how should you start, how I started, I saw a lot of videos. तो मुझे ये दिखता था कि ये जो बंदा या बंदी बोल रहे हैं जिन्होंने निकाला इस एग्जामिनेशन को, हाउ मच आई कैन कोरिलेट टू देयर वे ऑफ प्रिपरेशन, मीन्स उन्होंने जैसे तैयारी किया, इट इज़ नो वे इज आइडियल वे, कहीं ना कहीं सबका अपना लक फैक्टर आता है। सो उससे मेरा कितना कोरिलेट होता है, तो आई यूज़ टू फिल्टर आउट कि हाँ मैं लिखता था कि ये वाली चीज़ मुझे इनसे सही लगती है, ये वाला, एंड देन आई यूज़ टू रीड ओनली मोर अबाउट दोज पीपल जिनका मुझे लगा कि हाँ ये आइडियोलॉजीज मेरे मैच के, मैं इस तरह से प्रिपेयर करूँगा तो मेरे निकलने के चांसेस हैं, मैं इनके ब्लॉग्स पढ़ूँ। लेट से आई यूज़ टू रीड गौरव अग्रवाल सर्स ब्लॉग, कि उनके ब्लॉग पढ़ने से मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा, उन्होंने क्या लिखा था। हाउएवर always have your filter mechanism intact, that will always help you, और don't keep on piling up the books. So piling up the books से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप हर स्पेसिफिक टॉपिक अगर एक किताब रख ली और आपको लगा कि जो किताब लाने से वो इंडक्शन से रेडिएशन से आपके पास ज्ञान आ जाएगा, तो वो सरासर गलत है। A good strategy is you should have a book, you should only have a single book for a single topic at max I am saying. लेट्स से इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के लिए अलग से आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कल्चर के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से किताब पढ़ रहे हैं आप इतना ज्योग्राफी के लिए। इफ़ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी यू डोंट नीड टू रीड माजिद हुसैन सर और जीसी लियोंग सब चीज़ें, सिर्फ आप ज्योग्राफी स्पेसिफिक फिर आपका फोकस हो जाएगा, तो यू विल बी डेफिनेटली लूजिंग आउट। सिर्फ टाइम इज लिमिटेड, if you give time to some one subject then you will definitely underperform in some other subject। और सेकंड थिंग क्या होगा कि या तो आप अपने सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट तक जाते जाते सब कुछ अच्छे से कवर कर पाएंगे, शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे, तो अटेम्प्ट बर्बाद होंगे। एक और भी चीज़ है कि स्टार्ट एग्रेसिवली, लाइक जैसे क्रिस गेल ने चेस किया 112 रन है, तो ये नहीं कि हम 50 ओवर में चेस करेंगे, 12 ओवर में ही चेस कर लेंगे। द पॉइंट बीइंग अगर आप एग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं और एवरी डे यू पुश योर सेल्फ कि मुझे प्रोडक्टिव आउटपुट ज़्यादा देना है, ये नहीं कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है तो एक महीने तो मैं समझूंगा, मैं समझूंगी क्या ऑप्शनल है, आराम से देखूंगा, एक एक चैप्टर भी नहीं ख़त्म कर पाऊंगा एक दिन में, मैं विजन के जब लाऊंगा तो एक पोलाइटी ही ख़त्म नहीं हो पाएगा मेरे से एक दिन में, देन यू आर लूजिंग द ट्रैक, तब आप कहीं ना कहीं उस बैटल में पीछे होते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि बाकी लोग का वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, आपने इस पर्टिकुलर डे से स्टार्ट किया, बाकी लोग हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे अपने सेकंड थर्ड ईयर में चल रहे हो साइकिल में, एंड यू हैव टू कॉम्पीट विद देम, यू आर नॉट ओनली कॉम्पिटिंग विद द पीपल हु आर स्टार्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, so you have to catch up the pace and that is very critical for the simple reason being आज का समय जो वेस्ट किया हुआ है वो कल आपको भारी पड़ता है, and in near to the examination you will have a lot of material to read, so that is something which has to be avoided. Then one of the most important thing which I feel is very important in this examination is seeing the syllabus. of course आप सिलेबस अगर देख लिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी देख पाए, अगर आप सिलेबस नहीं देखना चाहते, सिलेबस देखना चाहिए, मैंने नहीं देखा था, बट अगर आप नहीं भी देखते हैं सिलेबस अच्छे से तो कम से कम एक काम करिए, या विजन या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो डिस्कशन ऑनलाइन फ्री अवेलेबल होता है यूट्यूब पे रिगार्डिंग द मेंस पेपर GS 1 2 3 4, वो 3 साल के तो आप देख ही लीजिए, लास्ट 1 2 3 ईयर्स के पूरा देखिए, बैठ के देखिए, सुनिए पूरा उसको आराम से, एस्से का भी डिस्कशन होता है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़, यू विल ट्राई अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसका आंसर होता है, एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, 30-40% डेटा, कुछ चीज़ें लाइक हो सकता है कि आपको ग्लास सीलिंग ये सब नहीं आता हो इस टाइम पे, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ फील कि हाँ कैसा सवाल पूछा जाता है, वन ऑफ द आंसर्स कैसा हो सकता है जो आपको डिस्कशन में आता है लेट्स से विजन के, एंड दोज डिस्कशंस आर रियली हेल्पफुल, 4 hour डिस्कशन ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, लास्ट 3 years 12 hour डिस्कशन एक दिन में करके GS 1 2 3 4 5 दिन एक हफ्ते में आप पूरा डिस्कशन देख सकते हैं, एंड यू विल हैव ए लॉट ऑफ फीडर पॉइंट्स टू स्टार्ट विथ। लोग कहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मेंस वाला जो पार्ट होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है स्टार्ट करने में, प्रीलिम्स यू विल ऑलवेज नीड द टाइम टू बिल्ड ऑन। आप स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के लिए नहीं कर सकते हैं, प्रीलिम्स धीरे 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 जब री इन्फोर्स होता है कि चीज़ मजूली आइलैंड मजूली आइलैंड मजूली आइलैंड सांगाई डियर, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मेंस में आपको पर्सपेक्टिव और आपको पॉइंट समझ में आने लगेंगे, एंड यू हैव टू रीड। स्टार्टिंग जब करते हैं कोई भी चीज़ का तो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से करना चाहिए, एंड देन यू शुड गो इनटू द प्रीलिम्स फ्लो।
क्योंकि जब तक आप आंसर समझेंगे नहीं कि चल क्या रहा है दुनिया में, एंड कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो न्यूज इन शॉर्ट्स को ही देख लेता था एक बार, फर्स्ट पोस्ट मेरे मोबाइल में आज भी है, पहले भी रहता था। एंड आई डोंट बिलीव कि यू हैव टू रीड अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ आंसर राइटिंग। दिस इज समथिंग विच आई स्ट्रांगली डिसएग्री। ओपेट्स पढ़ना अच्छी बात हो सकती है, बट डूइंग वो एक सेक्रेट हो कि यही न्यूज़पेपर से निकलेगा, दैट इज रॉन्ग। So you can have your own choices. You can read newspaper, you can read PIB website. What I always feel is कि न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स काइंड ऑफ ए प्रेशर लाइक थिंग कि हमें ये पढ़ना है, सब बोलते हैं हमें पढ़ना है, इसका डिस्कशन देखना है। वन ऑफ द क्लेवर स्ट्रेटजीज कैन बी, आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर के डिस्कशंस अवेलेबल होते हैं, तो आप यूट्यूब पे एक साम बैठ के एक हफ्ता के सारे डिस्कशंस 2x स्पीड पे तेजी से देख लेंगे, क्या क्या आया था, क्या लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या ऐसे समझ में आता है। इनिशियल पीरियड में वीडियोस देखना बहुत फ़ायदेमंद होता है, रादर देन रीडिंग अ बुक, वॉचिंग वीडियोस एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, वॉचिंग इट सीरियसली, नहीं कि हम सिर्फ देख रहे हैं। बिकॉज इनिशियल पीरियड में आपको चीज़ें पता ही नहीं होती कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो यू स्टार्ट गेटिंग ए फील ऑफ इट। अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो मैंने जैसे लर्निंग स्पेस से शुरू किया था, जो एक साउथ इंडियन सर पढ़ाते थे, सो इट स्टार्टेड गिविंग मी, अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है। वेरी फ्यू पीपल सी लर्निंग स्पेस वीडियोस फॉर यूपीएससी, बट हाउएवर आई फेल्ट कि दैट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे बहुत सारी टॉपिक्स पता चल गई कि यूएन कॉन्फ्रेंस क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। 1 वीक का समरी वो पढ़ाते थे, तो 1 वीक के समरी से पता चल जाता है कि इस वीक में क्या घटनाएं हुई। एंड एवरीथिंग इनिशियली विल बी वेरी वेरी नाइफ टू यू, सब चीज़ आपको नया लगेगा कि ये भी नया है, ये भी नया है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाइएगा आप डॉट्स। इट शुड नॉट बॉदर यू if you have to prepare it seriously. After 3-4 months only you will start getting a knack of it कि क्या चल रहा है एक्चुअली में और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि जो न्यूज़ रेगुलर चल रही है उसमें से ही मज़ा है, वही बेसिकली आने वाला है, रेगुलर चल रही है वही काम का चीज़ है। और सम डेटा जो आते हैं उसके लिए हमेशा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि डेटा फिर से अपडेट हो जाएगा, तो आपके टाइम तक आता है, तो जो डेटा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको देखना है। बहुत बार ये होता है कि कई लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिकल न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। इफ देयर इज ए टेम्पटेशन यू शुड रीड इट ऑल्सो। 10 मिनट 15 मिनट अगर आपने स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ ही लिया तो क्या प्रॉब्लम है। सो आई अगेन डिसएग्री विद दैट स्कूल ऑफ थॉट कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। यू कैन रीड इट, एग्जाम में आना नहीं आना, यू आर इन ए रीडिंग मोड एट द एंड ऑफ द डे। देन वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच आई ऑल्सो थिंक कि यू शुड बी डूइंग इज, जैसे एक टॉपिक उठा के उस पर सोचिए अभी आपको क्या आता है, एंड देन स्टार्ट मेकिंग निमोनिक्स आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर डे लगेगा कि अब मेरा फुल फ्लेज तैयारी हो गया है। एवरी डे, लेट से आज आपने तैयारी शुरू की, आज आप फिर से सोचते हैं, तो मान लो आपको मनरेगा में क्या आता है, स्मार्ट सिटी में क्या आता है, इनइक्वालिटी में क्या पता है, पॉवर्टी में क्या पता है, इकोलॉजिकल डिजास्टर में क्या पता है, यूएन में भारत का भी जो पोजीशन है कि भारत को मिलेगा कि नहीं, आपको अभी क्या पता है। हो सकता है आपको 5% पता हो, यू नो 10%, यू नो 15%। However, you need to write that in a circle बना के आपको क्या क्या पॉइंट्स अभी आपको लगते हैं पता है, and you need to do this exercise seriously, at least see at least 100 क्वेश्चंस आप शुरू वीक में, और आप अपना लिख के छोड़ दें, और फिर हर एक महीने के बाद एक दिन रिविजिट करें कि अब आपको कितना आता है वही 100 चीज़ों में। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू एवर। अगर आप ये करते हैं तो आपका सही में आपको दिखेगा कि आपकी इंक्रीमेंटल लर्निंग क्या हो रही है, कि कल को हमें कितना पता था कि एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो रिलेशन है हमें आज कितना आता है, 1 महीने पढ़ने के बाद कितना आता है, 2 महीने बाद कितना आता है, 3 महीने बाद कितना आता है, हमें कितना एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता चल रहे हैं। और इससे एक और भी जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फ़ायदा होता है, अगर आपने 100-200 क्वेश्चन वैसे लिख लिए 1-2 दिन में अभी सोच के, और तेज़ी से लिखे बिल्कुल समय बिना वेस्ट किए हुए। जब मैं बोलता हूँ समय बिना वेस्ट किए हुए, कई लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा। आपको अपना पूरा एफर्ट डालना ही होगा। 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का अगर तेजी से लिख रहे हैं, और उसमें लिखना भी आपको पूरा नहीं है, आपको बस एक बॉक्स डायग्राम बना के देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स अभी पता है। स्टैटिस्टिक्स आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है नहीं पता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका मैं कहूँगा कि मल्टी लॉन्गिट्यूडनल और हर तरह से एवरी एस्पेक्ट में इसका काफ़ी फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि मेंस के पहले वीडियोस देखिए, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका ओरिएंटेशन रहेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस चीज़ से
मैच करता है। ये ब्रिक्स कंट्रीज का क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के इस चीज़ से आता है। मोर ओवर जैसे सिलेबस, इसका एक अच्छा स्टार्टिंग हो सकता है कि आप सिलेबस के सारे कीवर्ड्स को देख के उससे क्वेश्चन बना के ये कर ले। वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, या तो आप सिलेबस से कर सकते हैं, या तो आप इनसाइट से या विजन में जो क्वेश्चन आते हैं जो उसके पहले पेज पे लिखा रहता है सिर्फ स्टार्टिंग में, उसका आप आंसर करने का कोशिश कर सकते हैं लास्ट 1 ईयर का देख के। दिस इज गोइंग टू बी द वन विच विल डिसाइड एक्चुअली कि आपके आंसर राइटिंग स्किल्स कैसे हैं और कितना अच्छा है, क्योंकि फिर आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट रहेगा हमेशा कि मुझे ये डेटा आ रहा है तो ये डेटा मैं इसको रिलेवेंट पढ़ूंगा, इसको रिलेवेंट चीज़ें पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि एफिशिएंट वे में स्टार्ट करिए, डोंट स्टार्ट हैपोजेडली कि ये बुक लेता है, इन्होंने ये बोला था, अच्छा ये भी ये पढ़ रहे थे, फिर 2 भैया से बात किए और 2 लोगों से बात किए, उन्होंने भी ये सजेस्ट कर दिया और ये बुक करना है वो बुक करना है, एंड देन आई एम नॉट फाइंडिंग द टाइम माई सेल्फ, आई एम नॉट एट पीस विथ स्टडी, आई एम नॉट फाइंडिंग इट कंफर्टेबल, मैप पॉइंटिंग भी करना है, इतना टाइट शेड्यूल बना लिया कि आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। Be flexible in your approach, but be very smart in your approach, and with all this flexibility and smartness, do the hard work which is going to be the backbone of your preparation. Again, to summarize, I will say प्रीलिम्स के लिए जो अभी कर रहे हैं, जो मान लीजिए अगले साल देना चाहते हैं, उनको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट विथ योर ऑप्शनल। हाँ, ऑप्शनल का मैंने नहीं बताया था, तो ऑप्शनल में भी डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। सी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज़ टू बी देयर। यू हैव टू सी द पैटर्न, यू हैव टू सी वट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, यू हैव टू थिंक what subject suits you. If you don't have any interest in any subject, then go with the one which is fetching generally good marks. And before deciding or before jumping into any subject with reading just 1 or 2 paragraphs, you should at least read couple of chapters or at least 2-3 chapters to understand कि बाकी सब खिंचा पाएगा कि नहीं. See the syllabus of that in UPSC and then start positively. So this is something which I will say कि start मेंस के आंसर देख लें एक बार, और ज़्यादा बुक्स दे भरोसा नहीं करें। सी कि किसका स्ट्रेटजी आपके लिए सही काम आता है, उसको एफिशिएंटली देखें। ब्लॉग्स पढ़ें तो उससे जो कोड्स होते हैं, जो ये होते हैं, स्टार्ट मेकिंग गुड नोट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। डोंट मेक बल्कियर नोट्स जिसके आप कंसोलिडेशन में बाद में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। स्टार्ट रीडिंग इन एन अप्रोच जो कि इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा एंड प्रोडक्टिव होगा। The lesser the time you spend in understanding which is the best approach, the lesser the time it will take you to crack this examination. This is something which is applicable actually for all examination. शुरू का जितना इन्वेस्टमेंट आप बचाइएगा समय का, जितना आप इफेक्टिवली, और मान लीजिए अगर आप सही वे में नहीं भी कर रहे हैं, लेटेस्ट से कि आपने कुछ स्टार्ट कर दिया और लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम अभी हिस्ट्री नहीं कर रहे हो, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दिस प्रोसेस कि मैं इतने क्वेश्चंस करूंगा। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द क्वेश्चंस, एंड मैं लिखूंगा और मैं उन क्वेश्चंस को ही फिर से पर्टिकुलरली ध्यान से पढ़ूंगा, you will have your own way of clearing, because other people who will be giving you advice there, they might not be the one who would be knowing the ideal way, and therefore they are also preparing. So have the confidence कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, बस सही तरीके से करना भी होगा to gain that confidence. With this note, I'll end up this video and wish you all the newcomers to this examination all the best. Keep preparing. However, always understand that you have to allot a fixed time for preparation, and be very emotional about your studies and don't be emotional about your result. आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको दुख होना चाहिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये चुना है पढ़ाई करने के लिए। पर जब रिजल्ट नहीं आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए। इन इंडिया रिवर्स हैपेंस, व्हेन रिजल्ट डज नॉट कम वी डोंट डू ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, वी